Hello guys, now we'll study the class 9th NCERT Democratic Politics chapter 5 Democratic Rights. Here we will study right to freedom. So under this right to freedom we will study the most of the things like what is the definition of freedom, okay, where does this right to freedom is defined in our constitution and to whom it is applicable. Now फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स. ओके, बेसिकली फ्रीडम का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं होना चाहिए. लेकिन इन अ प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय बी इट अदर इंडिविजुअल्स और द गवर्नमेंट. बोला जाता है कि बट if we talk about the practical life, okay, so practical life state that there should be no interference in our day to day life, even in the individual person or the government. We want to live in society but we want to be free. See, we all are social animals, okay, we want to live in a society but we want to live freely. We want to do things in the way we want to them टू डू दैम. बोला जाता है कि हम सब चीज़ें वैसे करना चाहते हैं जैसे हमारा मन करता है. अदर शुड नॉट डिक्टेट अस व्हाट वी शुड डू. बोला जाता है कि दूसरे लोग को डिक्टेट नहीं करना चाहिए, ये बोलना नहीं चाहिए कि आप इस काम को ऐसे करो. जैसे कई बार आपने भी फील किया होगा कि कुछ वर्क को हम अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं बट हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, फ्रेंड्स हमें कुछ सजेस्ट करते हैं. उस टाइम पर हमें बहुत गुस्सा आता है. तो दैट्स ओनली बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू लिसन टू अदर्स, वी डोंट वॉन्ट सम rules. So under the Indian constitution all the citizens have right to, so that's why to keep all the things in a notice, ठीक है, Indian constitution has given some right which is defined in the Indian constitution, like freedom of speech and expression. Everyone have right to speech and express their feelings, okay. Assembly in peaceful manner, okay, what is that? Assembly in peaceful manner. In peaceful manner they can assemble the things, not form association and unions. People have a right to form the association and unions. See, basically you might be heard about there are lots of association and unions are formed. That's only because everyone, individuals have a right to form the association and union, move freely throughout the country, okay. We all people, you might be noticed that roaming here and there, moving from one state to another state, moving from one country to another country. So this is the, we have a right, no one can stop us. Resides in any part of the country, we can reside in any part of the country. If we are the Indian citizen, we don't need to we don't need to show the some state wise Aadhaar card, state wise some identity proof. One Aadhaar card is in India is applicable to all the states of the India. सी लाइक जैसे कि यूएसए में क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सिटीजन्स का कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड. लेकिन इंडिया में एक ही कार्ड जो है सारे स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है. प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. बोला जाता है कि किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना, ठीक है, और किसी भी ऑक्यूपेशन को कैरी करना, ठीक है, ट्रेड और बिजनेस को. यू शुड रिमेंबर दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू ऑल दिस फ्रीडम्स. बोला जाता है कि हर एक के पास ये सारा करने का अधिकार है. दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम इन सच अ manner that violates others right to freedom. बोला जाता है see, basically you have a right, okay, so all these rights are mentioned in our constitution, but this like ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी एक्शन ऐसा ले जिसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो. योर फ्रीडम शुड नॉट बी कॉज अ पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर. बोला जाता है कि आपका जो फ्रीडम है वो लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग विच इंजर्स नो वन एल्स. बोला जाता है कि आप फ्री है हर वो काम करने के लिए जो जिससे किसी और को तकलीफ़ नहीं होती है. फ्रीडम इज़ नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट्स. बोला जाता है फ्रीडम ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लाइसेंस है. सपोज जैसे कि जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ नेट. आपके पास अगर अनलिमिटेड पैक होता है तो आप कुछ भी देखते हो, बट अगर आपके पास लिमिटेड होता है, सपोज 2 GB 4 GB इन अ डे, तो आप पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट की चीज़ देखते हो. तो सेम ऐसे ही है कि फ्रीडम जो है वो अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है कि हम कहीं भी इसको यूज़ कर सकें, ठीक है. हमारे पास ये लाइसेंस नहीं है कि हम किसी को 2 थप्पड़ मार के या अब्यूज़ करके आ जाए, ठीक है. अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टन reasonable restriction on our freedom in the larger interest of the society. So basically all these rights are mentioned in our constitution. Although all these rights are mentioned in our constitution, but government has authority or government has right to impose against all these rights. Freedom of speech and expression. बोला जाता है
नाउ फर्स्ट हमने जो यहाँ पे बुलेट पॉइंट में देखा उसको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। राइट टू फ्रीडम में हमारा सबसे पहला जो राइट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कैसे एक इंसान जो है अपनी स्पीच दे सकता है, ठीक है। आप देखते हो प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं, स्कूल्स में टीचर्स देते हैं, समटाइम स्टूडेंट्स भी किसी टॉपिक पे देते हैं। तो ये रीज़न बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इसका अधिकार देता है। इज़ वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ एनी डेमोक्रेसी। बोला जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है और एक्सप्रेशन जो है वो हमारे डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है। आवर आइडियाज़ एंड पर्सनैलिटी डेवलप ओनली व्हेन वी आर एबल टू फ्रीली कम्युनिकेट विद अदर्स। बोला जाता है कि जो हमारे आइडियाज़ और पर्सनैलिटी है वो बेसिकली डेवलप तब होती है जब हम फ्रीली किसी से बात कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा अगर आप किसी टॉपिक को लेके किसी और से बात करते हो तो कई बार क्या होता है, जैसे इन्वायरमेंट, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के बारे में आपके जो थॉट्स होंगे, आपके पास जो नॉलेज होंगे, अगर आप सेम टॉपिक पे किसी और से बात करेंगे तो दूसरे पर्सन से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आती है, जिसके वजह से क्या होता है हमें नॉलेज भी इंक्रीज़ होता है और हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। यू मे थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। सो बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड होती है हमारे माइंड में तो हम दूसरों से ज़्यादा अलग सोच सकते हैं। इवन इफ 100 people think in one, you should have a freedom to think differently and express your views accordingly. Suppose take example, अगर आपको फ्रूट्स नहीं पसंद है एंड आपके घर में सब लोग खा रहे हैं, ठीक है, और टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी टॉपिक, तो अगर उसको 100 लोग भी अपोज कर रहे हैं तो आपके पास इतना राइट है कि आप उसको उसके अगेंस्ट में बोल सको कि मुझे ये नहीं पसंद है, आई डोंट वांट टू डू। You may disagree with the policy of government or activities of an association. You are free to criticize the government or the activities of association in your conversation with parents, friends and relatives. बोला जाता है सी, सपोज़ अगर गवर्नमेंट में कोई स्कीम निकाली, ठीक है, या फिर कोई पॉलिसीज़ निकाली, अगर आपको वो पॉलिसीज़ वो स्कीम नहीं पसंद है तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, उस स्कीम उस पॉलिसीज़ के बारे में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने कज़न से डिस्कस कर सकते हो, उसको इवन क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो। यू मे पब्लिसाइज योर व्यूज़ थ्रू द पैम्पलेट, मैगजीन और न्यूज़पेपर। सी आपने देखा होगा जब भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कई बार जो राइटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ राइटर्स जो होते हैं, जैसे टेक एग्जाम्पल ऑफ रवीश कुमार, ठीक है, रवीश कुमार जो हैं वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। ही बेसिकली टेल द ट्रूथ टू द मीडिया, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट नहीं करते। तो आपको अधिकार है, अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी, तो आप इसको पब्लिश कर सकते हो न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, ठीक है, ऑनलाइन ब्लॉग्स में, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यू मे पब्लिसाइज योर व्यूज़ थ्रू द पैम्पलेट, मैगजीन और न्यूज़पेपर, ठीक है। यू कैन डू इट थ्रू पेंटिंग, पोइट्री और सॉन्ग, ठीक है, आप पेंटिंग, पोइट्री और सॉन्ग्स को भी यूज़ करके ये सब कर सकते हैं। हाउ यू कैन नॉट यूज़ दिस फ्रीडम टू इंसिगेट वायलेंस अगेंस्ट अदर। सो बट आप ये ऐसे वे में नहीं कर सकते हो कि लोगों के बीच में नफ़रत फैलाना है, ठीक है। अगर आप बोले गवर्नमेंट ने ये ख़राब किया है, ठीक है, तो आप इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ठीक है, बट इसमें वायलेशन नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट यूज़ इट टू द इंसाइट पीपल टू रिबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट। सो बेसिकली आप जो पब्लिक है उसको भड़का नहीं सकते, उसको उकसा नहीं सकते हो कि गवर्नमेंट के लिए क्रिटिसिज्म के लिए स्टार्ट हो जाए। नाउ neither can you use it to defame others by saying false and mean things that cause damage to person's reputation। बोला जाता है, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ या फिर कोई स्कीम्स अच्छी नहीं लगी, ठीक है, आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट मोड्स, ठीक है। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज अगर आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हो, लेट्स टेक द, अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेके कुछ बात बोलते हो तो आपको इतना कुछ भी कहने का अधिकार नहीं, इतनी गलत चीज़ उनके अगेंस्ट में कहने का अधिकार नहीं है कि उनके इमेज के और रेपुटेशन पे असर पड़े। नाउ सिटीजन हैव फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशन, जस्ट अ मिनट, रैलीज एंड डीमॉन्स्ट्रेट ऑन एनी इश्यूज़। बोला जाता है कि जो सिटीज़न है, मीन्स जो आम आदमी है, उनके पास क्या अधिकार है, क्या फ्रीडम है उनके पास कि वो मीटिंग्स कर सके, प्रोसेशन कर सके, रैलीज निकाल सके, ठीक है, डेमोस्ट्रेट कर सके किसी भी इशू पे। दे मे वांट टू डिस्कस अ प्रॉब्लम, ठीक है, बोला जाता है कि वो जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज आइडियाज़, मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट टू कॉज और सिक वोट्स फॉर कैंडिडेट और पार्टी इन एन इलेक्शन। बोला जाता है जो सिटीज़न है वो किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, मोबिलाइज कर सकते हैं पब्लिक सपोर्ट को, ठीक है, वोट्स फॉर कैंडिडेट और पार्टी, जैसे इलेक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। तो इलेक्शन
इलेक्शन में होता क्या है कि जो लोग रैलीज़ निकालते हैं या फिर अपने बारे में कुछ मेमोरेंडम पास करते हैं कि हम इलेक्शन के बाद ये करेंगे, हमें वोट दोगे तो, ठीक है, ये सारी चीज़ करने का पूरा अधिकार है। बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल, बट ऐसी मीटिंग जो होनी चाहिए वो पीसफुल होनी चाहिए, ठीक है। दे शुड, जब हमने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखी थी। तो अपार्ट फ्रॉम इलेक्शन और भी चीज़ों में अगर कोई मीटिंग्स होती है तो वो पीसफुल होनी चाहिए। दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर, ब्रीच ऑफ द पीस इन सोसाइटी। बोला जाता है कि बेसिकली वो लोग जो है उनको पब्लिक डिसऑर्डर और ब्रीच ऑफ जो पीस ऑफ सोसाइटी होता है वो मतलब मीन्स सोसाइटी में पीस को मेंटेन करना चाहिए, उसे डिसऑर्डर नहीं करना चाहिए। दोज हु पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटीज़ एंड मीटिंग शुड नॉट कैरी वेपन्स विद देम। ओके, जनरली आपको मीटिंग्स करने का अधिकार, ठीक है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, लेकिन अगर आप मीटिंग्स कर रहे हो, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आप वहाँ पे कोई वेपन्स कैरी नहीं कर सकते हो ताकि वो किसी भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ में वर्क करें। सिटीज़न ऑल्सो कैन फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, जो पीपल्स हैं वो भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्कर्स इन अ फैक्ट्री कैन फॉर्म वर्कर्स यूनियन टू प्रॉम्प्ट देयर इंटरेस्ट। बोला जाता है जैसे कि अगर हम फैक्ट्रीज़ की बात करें, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में मोस्टली वर्कर्स हो रहे हैं। सपोज़ अगर किसी वर्कर्स के खिलाफ या फिर किसी वर्कर्स के अगेंस्ट बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है तो वो एक एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। सम पीपल इन अ टाउन में केम टुगेदर टू फॉर्म एन एसोसिएशन टू कैंपेन अगेंस्ट द करप्शन और पॉल्यूशन। सो सपोज़ अगर जो लोग टाउन में रह रहे हैं, ठीक है, या सिटीज़ में रह रहे हैं, तो अगर वहाँ पे कोई काइंड का करप्शन हो रहा है या फिर पॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो एक एसोसिएशन का गठन कर सकते हैं और अपनी रैलीज निकाल सकते हैं। नाउ citizen we have the freedom to travel to any part of the country। सो बेसिकली हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी, ठीक है। पहला तो हमने देखा कि हमारे पास स्पीच का है, ठीक है, सबसे पहले द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड जो हम देख रहे हैं, सिटीजन हैव फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशन, रैलीज एंड डेमोस्ट्रेट ऑन एनी इशू। अब हम देख रहे हैं फ्रीडम टू travel to any part of the country, ठीक है। everyone individuals have a right to travel to the any part of the country। we are free to sorry we are free to reside and settle in any पार्टी ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बोला जाता है कि हमारे पास इतना अधिकार है कि हम इंडिया के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं। वहाँ के सपोज अगर आप यू बिलोंग फ्रॉम केरल, ओके, यू आर कमिंग टू द दिल्ली, नो वन कैन डिनाई यू टू सेटल डाउन देयर, ठीक है। यू हैव अ राइट, योर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन राइट टू सेटल डाउन देयर। लेट अस से अ पर्सन हु बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ आसाम वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस इन हैदराबाद, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं कि अगर एक पर्सन है जो आसाम में रहता है, उसका घर आसाम में है, ठीक है, और वो हैदराबाद में क्या करना चाहता है, बिजनेस ओपन करना चाहता है। ही मे नॉट हैव एनी कनेक्शन विद दैट सिटी, ऑल्दो हैदराबाद से उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। ही मे नॉट हैव इवन सीन इट एवर, उसने हैदराबाद में कभी देखा भी नहीं होगा, मान के चलो। एट as a citizen of India he has the right to set up base there। so being a citizen of India, like हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारी चीज़ें दी है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वहाँ पे सेटअप करे। दिस राइट्स अलाउज लैक्स ऑफ पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस, टाउन्स एंड फ्रॉम पुअरर रीजन ऑफ द कंट्रीज टू प्रॉस्पेरस रीजन्स एंड बिग सिटीज़। बोला जाता है कि ये जो अधिकार है, फ्रीडम टू ट्रैवल और फ्रीडम टू मूव, ये क्या किया है कि ये क्या किया है, इसकी वजह से क्या है कि बहुत से जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं विलेजेस में, लेबर्स हैं, ठीक है, पूरा रीजन में, वो क्या चाहते हैं, जो ऐसा रीजन है जैसे वेल सेटल्ड है, वहाँ पे अपने ऑक्यूपेशन के लिए जाते हैं, अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए जाते हैं। द सेम फ्रीडम एक्सटेंड टू चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। सेम चीज़, अगर ये जो फ्रीडम है, जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रैवल, ये चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन भी होती है। सपोज यू बिलोंग फ्रॉम द लाइक असम, ओके, यू बट योर जॉब इज इन टेक एग्जाम्पल ऑफ कर्नाटका, सो यू हैव अ राइट टू गो देयर। नो वन कैन फोर्स यू टू डू और नॉट टू डू सर्टन जॉब्स, ठीक है। आपको जॉब के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये जॉब करो या नहीं करो। वुमेन कैन नॉट बी टोल्ड दैट सम काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन आर नॉट फॉर देम, ओके। विमेन, इवन विमेन की हम बात करें तो विमेंस का क्या होता है कि लाइक सपोज विमेंस को नहीं बोला जा सकता कि उनके लिए ये जॉब अवेलेबल नहीं, ये जॉब नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इंडिया में क्या होता है, अगर हम सिविल सेक्टर्स में देखें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कई जगह पे क्या होता है, जनरली विमेंस के लिए वैकेंसी नहीं होती है, बट अभी स्टार्ट हो गई। अभी हमारे आर्मी में भी बहुत पहले नहीं थी पर वहाँ पे भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। आर्मी के और भी सेक्टर में नहीं थी पर वहाँ पे भी सारी चीज़ें, तो स्लोली ये चीज़ें हो रही हैं।
The constitution says that no person can deprived of his life or personal liberty except according to प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बोला जाता है किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करने का कोई अधिकार नहीं है जो प्रोसीजर लिखा है लॉ के उसके अगेंस्ट के खिलाफ। इट मीन्स दैट नो पर्सन कैन बी किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड अ दैट सेंटेंस। ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन जो है उसको कोई मार नहीं सकता। ठीक है, जब तक नहीं मार सकता चाहे उस पर्सन ने कितना भी बुरा काम किया, सपोज उस पर्सन ने चोरी की हो या किसी के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, लेकिन तब तक जब तक कोर्ट उसे फांसी की सज़ा नहीं दे सकती कोई उसे किल नहीं कर सकता। और फांसी की सज़ा देने के बाद भी कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होती है। Now, it also means that a government or police officer cannot arrest or detain any citizen unless he has proper legal justification. सेम अगर हम दूसरी चीज़ में बात करें, किसी भी नागरिक को मतलब लाइक जो पुलिस है, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, ठीक है, जो जस्टिस फिल्म से आते हैं, वो किसी को अरेस्ट नहीं करते हैं और तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके पास प्रॉपर लीगल नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, अगर कोई किसी को अरेस्ट करना आता है तो बोलता है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो इवन व्हेन दे डू दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स। ठीक है, अगर कोई पुलिस वाला आता है या फिर आपको अरेस्ट करने जाता है तो उनको कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। अ पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन इन अ कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। बोलता है अगर कोई पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया कस्टडी में, उनको इन्फॉर्म्ड करना पड़ेगा ऐसे रीज़न के लिए और अरेस्ट और डिटेंशन के लिए। सेकेंड, a person who is arrested and detained shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hours of arrest। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई अरेस्ट करके या आपके फैमिली मेम्बर या फिर आपके नेबर्स को कोई भी अरेस्ट करके लेके जाता है तो उसको विथिन 24 आवर्स के अंदर उसे कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा। नाउ सच पर्सन हैज़ राइट टू कंसल्ट अ लॉयर और एंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस। बोला जाता है कि अगर किसी को लेके जाता है कोई तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं कि लॉयर रखने का पूरा अधिकार है। लेट अस रिकॉल द केस ऑफ गैंटानामो बे एंड कोसावा। द विक्टिम्स इन बोथ दिस केसेस फेस द थ्रेट टू द मोस्ट बेसिक्स ऑफ ऑल लिबर्टीज़। बोला जाता है कि अगर जब हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, तो हमने देखा कोसाबा हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, गैंटो में हो गया, यहाँ पे क्या थे, लोगों के पास इतने अधिकार नहीं थे कि वो अपनी लिबर्टी को फॉलो कर सके, लेकिन यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें मेंशन की गई है। नाउ ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो राइट टू फ्रीडम पढ़ा, राइट टू फ्रीडम के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स देखे। जैसे राइट टू फ्रीडम में हमने सबसे पहले देखा कि राइट टू स्पीच, हमें बोलने का पूरा अधिकार है। ठीक है, पीसफुल मैनर से असेंबल करने का पूरा अधिकार है, एसोसिएशन करने का, यूनियंस बनाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, हमें फ्रीली अपने कंट्री में मूव करने का अधिकार है। ठीक है, और हम फ्रीली रह सकते हैं अपने कंट्री में, हम कोई भी जॉब को प्रोफेस कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये सारी जो राइट्स हैं ये बेसिकली राइट टू फ्रीडम के अंदर आती है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, फंडामेंटल राइट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हाँ, ये राइट टू फ्रीडम जो है हमारा, हमने सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी पढ़ी, अभी हम राइट टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं। तो राइट टू फ्रीडम जो है वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड एंजॉयड दिस क्लास। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास।